Hi. Hello. It's been a long day without you, my friend. काफ़ी समय हो गया इस चैनल पे मुझे कुछ डाले हुए, इस पॉडकास्ट पे मुझे डाले हुए इग्नोरांते। इस बीच मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन से जाना पड़ा बिकॉज पहले मेरा एक चैनल था इग्नोरांते, जिसपे मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं डेली सुबह उठ के एक वीडियो बनाऊंगा एंड ऑल द थॉट्स विच हैव कम अप इन माई माइंड ड्यूरिंग द नाइट स्लीप I will vomit it out on this video. Not vomit, but प्यार से vomit. But then I did a podcast with my friend and I thought where to put that because that was very unhinged and बहुत ही offensive kind of material था उस पे. तो उसको मैंने इसी पे डाला हुआ था इस पे, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं उसके अलग चैनल बनाऊंगा. And I wanted a particular name for that channel which I was not getting on YouTube. I don't know why. उनकी पॉलिसी पता नहीं. वैसे तो you can keep any name at like any number of times. उस नाम से मुझे और भी I wanted to create a podcast called The Best Podcast Ever. But I was not getting that name, so I was waiting because I wrote to them. मैंने गूगल वालों को मैसेज किया कि मुझे ये नाम चाहिए है, कैसे होगा. उन्होंने बोला भाई सिस्टम का काम है, सिस्टम अपने आप चेक करता है कौन सा नाम रहेगा कौन सा नाम नहीं रहेगा. तो मैंने ये सिस्टम का काम है उन्होंने बोला ऐसा मुझे. लेकिन तो उन्होंने कहा कि आप लिखो, उनको फीडबैक फॉर्म भरो और बोलो कि मुझे ये नाम चाहिए प्लीज़, इफ़ आई कैन हैव दिस नेम प्लीज़ डू. एंड आई रोट टू देम बट सो आई वॉज वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई बट इट डिड नॉट कम. But what did come was the controversy regarding the freedom of speech, regarding how should we act, how should we behave in public, what should be the content which our, kids or our people will consume. किसी ने कुछ ऐसा outrageous बोल दिया किसी एक शो पे, as we all know, which, ignited a conversation in the country. That what should be the format or what should be the, where is the limit, where is the line, and is there a line in terms of the type of content, its offensiveness, abuses, swear words, dirty thoughts, which we all have and which we, जो कि हम बात करते हैं आपस में, पांच दोस्त लोग बैठ के बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स बट दैट इज़ अ सेफ स्पेस. बट इट शुड दैट कंटेंट बी पुट ऑनलाइन वेयर any number of people can watch it without any context, without any filter, without any discretion about it कि ये गलत है. But I am watching it because it is entertainment. This is not a emulatable thing. उस context के साथ हर कोई उसको नहीं दे सकता. So, and because of that, this controversy around, that bare biceps podcast, जो रणवीर अलाहाबादी है उन्होंने जो बोला और उससे जो controversy निकली और उससे जो discussion generate हुआ, that made me think about what should be the format or where should the line be basically. कहाँ पे वो लाइन हमको ड्रॉ करनी है, कहाँ पे वो लाइन खींचनी है, उसके बारे में that this controversy made me think. And what did I think? What I came to the conclusion is no or yes. Now what is no and what is yes? Because until and unless I ask the question, merely an answer of yes and no won't tell you anything about my conclusion. What is yes and what is no? In what respect? In answer to what question? The question is this: should there be a limit? Should there be a line?
Yes. And is freedom of expression absolute? No. I think, you know, I think it's not. It's not means it should not be absolute. You know, when you talk in public, जब हम पब्लिक में बात करते हैं, जब एक सामूहिक और एक ऐसे प्लेस, ऐसे स्पेस में बात करते हैं जहाँ हर कोई सुन सकता है हमारी बात. You know, it's not merely by law, but as a responsible citizen you should watch your words. वैसे तो हमको अपने शब्द और हम क्या बोल रहे हैं वो हर जगह पे देखना चाहिए. वी हैव टू वॉच इट, वी हैव टू, कहते हैं ना हमारे इसमें हमारे हमारे धर्म में एक, और जो ये कल्चर है, इसमें एक कंसेप्ट है विच इज़ कॉल्ड वाक शुद्धि. वाक शुद्धि मीन्स वट एवर यू से इट हैज़ टू बी प्योरिटी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. दैट इज़ वट ऑल द यम नियम, जो हमारे जो अष्टांग योग में जो पहले 2 पार्ट हैं, यम नियम, दैट इज़ ऑल अबाउट प्योरिटी ऑफ द बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ द माइंड. एंड दैट्स when we are talking about purity in that context, one has to be extremely यार मुझे बहुत दूर पे लगाना पड़ रहा है माइक. one has to be extremely केयरफुल एंड कॉन्शियस अबाउट इट कि हम क्या बात कर रहे हैं. एंड बट देन द थिंग कम्स अप कि अगर हम कोई गलत, कोई गंदी मीन्स एज टर्म्ड बाय सोसाइटी, बिकॉज वट गंदी क्या होता है, लेकिन अनएथिकल अगर कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं तो इज इट राइट? बिकॉज इफ यू डूइंग समथिंग कॉन्शियसली, then it absolves you of the so-called पाप of it. उसका जो पाप है वो आपको नहीं लगेगा, because you are doing it consciously. You are not doing it in the reaction. You are not doing it as a reaction to something, but you are waiting, thinking, and when you are in act, you are conscious of the act. लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है. तो कुल मिला के मतलब इतना बोलने का मतलब मेरा ये था कि मैंने डिसीजन ये लिया है, भाई यार ये कोई वेल्डिंग की दुकान है मेरे पीछे ना, कुल मिला के मैंने डिसीजन ये लिया है कि आई पर्सनली विल चूज टू ड्रॉ अ लाइन. आई विल ऑप्ट टू ड्रॉ अ लाइन विच आई शुड नॉट क्रॉस. नाउ व्हाट इज दैट लाइन? लेट मी क्लैरिफाई इट. क्या मैं गालियों का यूज़ नहीं करूँगा अपने चैनल्स पे? दिस एंड अदर चैनल विच आई एम रनिंग, नो, आई विल यूज़, बट आई विल यूज़ इट वेयर इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसमें तो मैं नहीं करूँगा, आई थिंक, ऐसा मैंने सोचा है. अभी तो फ्यूचर में हु नोज़. इस चैनल पे कोई गालियों का यूज़ नहीं होगा, बट द अदर चैनल विच इज़ अ कॉमेडी चैनल वेयर आई do comedy content and I write scripts and do all those things there, वहाँ पे because it is necessary to put a point sometimes, and sometimes जो गालियाँ हैं आपको अपना point रखने में बहुत help करती है, because that they impact, तो उसमें करेंगे. but it won't be the sake of for the sake of it. It won't be the sake of for the sake of it. It will be where it is absolutely necessary. That is my line regarding the kind of content, like the thing which the man said, रणवीर अलाहाबादी ने जो बोला उसमें कोई गाली नहीं थी. I don't think a person with मुझे नहीं लगता कि वो जो क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा वहाँ पे वो उसके दिमाग की उपज थी. He read it somewhere or he heard it somewhere. और मैंने भी इससे पहले वो बहुत सारे, मैंने एक और प्रोग्राम देखा था, और अभी एक और क्लिप आई है हमारे इंडियन कॉमेडियन की ऑलमोस्ट 10 years बैक से, जिसमें वो यही क्वेश्चन पूछ रहे. तो आई थिंक दिस इज़ समवेयर इन सम डर्टी बुक्स और समवेयर कहीं लिखा होगा किसी ने, बिकॉज इफ समवन इज कमिंग अप विद दिस क्वेश्चन हिमसेल्फ,
आई डोंट नो मीन्स लाइक एक बहुत आपको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा ना विच इज़ क्वाइट इनसेन टू थिंक इन दैट डायरेक्शन एंड कम अप विद दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. तो उन्होंने कहीं सुना, कहीं देखा, कहीं पूछा और वो बोल दिया विदाउट एनी डिस्क्रिशन. और बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ द शो इज़ लाइक दैट. उस शो का कंसेप्ट ये है कि आपको जितने उनके एपिसोड आए हैं, मैंने देखे नहीं है बट द क्लिप्स आई हैव सीन, कि आपको यू हैव टू से एज ऑफेंसिव एज यू कैन से टू ग्रैब द आई बॉल, टू ग्रैब द अटेंशन, टू ग्रैब 5 लोग बैठे हुए हैं उसमें से कभी कभी 2-3 कॉमेडियन होते हैं, कुछ कॉमेडियंस नहीं होते हैं. सो टू कीप अप विद अदर पीपल आप ह्यूमर की जगह ऐसे शॉकिंग ह्यूमर का यूज़ करते हो, बिकॉज दैट इज़ ईजी, दैट डज नॉट नीड एनी राइटिंग एंड इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशंस. आपको जस्ट कोई ऑफेंसिव, कोई शॉकिंग चीज़ बोलनी है, दैट ऑल्सो समटाइम ब्रिंग आउट लाफ्टर. सो दैट्स व्हाट हैपेंड देयर. तो मेरे चैनल पे इस केस में ऐसा आई थॉट थिंक ऐसा होना चाहिए, बट या आई थिंक दैट्स वेयर आई विल ड्रॉ द लाइन कि it won't be an offensive. I don't know, man. There is no line actually. Sorry, I changed my stance. There is no line, but there is an internal line. There is an conscious. There is a conscious line. There is a consciousness. Okay, let me rephrase it. कोई line नहीं है, लेकिन I will make my content consciously. Seeing what impact what I am putting out on the internet will have if somebody is watching it, if anybody is watching it, if anyone is watching it, whatever kind of state they are in, they should not be negatively influenced by it. That's my line. I said it. There. तो ये बात है भाई साहब. बड़ा काफ़ी. तो पता नहीं आपको क्या लगता है कि जो इस कंट्रोवर्सी को लेके जो रिस्पॉन्स आया, इज़ दैट गुड? आई डोंट नो मैन, लाइक आई एम ऑन द फेंस ऑन इट. क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं इतना तो नहीं होना चाहिए, बोला चलो गलत बोला, ठीक है ये है, पर सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. मुझे तो लगता है कि सरकार क्यों इन्वॉल्व हुई है. एनी टॉपिक विच ग्रैब्स अटेंशन, विच ग्रैब्स आई बॉल्स, कोई भी इशू जो है, जब लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे, तो गवर्नमेंट को लगता है कि ए वेट अ मिनट वो में ना वेट अ मिनट, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स. इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में नंबर गेम है जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है. तो एज सुन एज दे गेट द नंबर कनेक्टेड टू एनी टॉपिक, एनी इशू, दे विल जंप इन. देश में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं तो अभी मैं एक उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर पे एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जिस पे मुझे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, पर वो किसी और पॉडकास्ट में कभी करेंगे. बिकॉज उस स्क्रिप्ट में मुझे FIR का डर है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत बातें गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोली गई हैं. खिलाफ फॉर द सेक ऑफ खिलाफ नहीं बोली गई हैं, सच्चाई बोली गई, द फैक्ट बोला गया है. बट समटाइम्स इट फायर्स हमारी जो सरकार है उनका जो क्रिटिसिज्म लेने का थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी कम होता है. यूजुअली लोगों को पता नहीं है, मतलब इंडियन सोसाइटी में क्रिटिसिज्म नहीं पता लोगों को क्या होता है. या तो सीधे गाली पता है या सीधे तारीफ पता है. क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का कोई स्कोप यूजुअली नहीं होता है, और होता भी तो बहुत थ्रेशोल्ड बहुत कम है उसका. हाथ जोड़ के, माफ़ी मांग के, सर झुका के आप थोड़ा कि मालिक थोड़ा ये देखिए, आपने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है मालिक. गलती नहीं है आपसे, हो गया, आप बस वो थोड़ा इसको ठीक कर दीजिए. इस तरह का क्रिटिसिज्म हम लोगों को समझ आता है, हमारी सरकारों को समझ आता है. तो वो इशू अलग है. लेकिन मैं किस बात ही कर रहा था, लेकिन मैं भूल गया. हाँ, तो मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा था. अबे मैं किस बारे में बात कर रहा था, मैं भूल गया. हाँ, इश्यूज़ की बात कर रहे थे ना. देश में इतने देश में इतने सारे इश्यूज़ हैं. जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर पे, we don't even know how big that
दैट्स अ प्रॉब्लम इज दैट इज़ अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो। इतनी बड़ी समस्या है ना जंगलों में आग लगना, हजारों करोड़ों में भी, आई डोंट नो मैन, करोड़ों साल पुराने जंगल वी आर डिस्ट्रॉइंग, लाइक यू नो, क्या बोलूँ मैं यार। वो आप, मैं इस पे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोग देखेगा उस शो को जब भी वो आउट होगा, अगर आउट होगा तो, बिकॉज आई एम स्टिल इन टू माइंड्स कि मैं उसको आउट करूँ कि ना करूँ, बट दैट डिस्कशन इज़ फॉर अनदर टाइम। लेकिन इतनी सारी समस्याएं, पॉल्यूशन की इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा हाइप, इतना बड़ा हो हल्ला तो पॉल्यूशन के खिलाफ तो नहीं देखा मैंने, हवा के खिलाफ तो नहीं देखा मैंने। पानी की इतनी बड़ी समस्या है, केवल बड़े बड़े शहरों में नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरे देश में पानी की इतनी बड़ी समस्या है। जमीन, सॉइल, सॉइल की इतनी बड़ी समस्या है। अभी मैं क्या बोलते, मैंने देहरादून से और प्रयागराज तक ट्रैवल किया, 850 किलोमीटर बाई रोड। आई सॉ स्ट्रेच लाइक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस ऑफ लैंड, बहुत बड़ा, मतलब पूरी जो ज़मीन थी ना रास्ते में हमारे, बड़े बड़े खेत थे, दूर दूर तक उनका अंत नहीं दिख रहा है। खेत थे लेकिन पेड़, पेड़ एक नहीं थे उसमें। तो ऐसा तो हम अपनी ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या है सॉइल, सॉइल का डिटोरेशन, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं जाएगा सॉइल में, एंड कुछ टाइम बाद आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालो, कितना भी कुछ डालो, ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, बैरन हो जाएगी, बांझ हो जाएगी ज़मीन, कुछ उगेगा नहीं उस पर। इतनी बड़ी समस्या है वो, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एजुकेशन हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है, समस्या ही है, क्योंकि लोग, अगर बच्चे, अगर 15 साल के, 14 साल के बच्चे कर रहे हैं, एंड आई नो यूट्यूब जो है ऐसे वर्ड को सेंसर कर देता है तो मैंने बोला नहीं, तो दे आर ऑफिंग देम सेल्फ, लेट्स लाइक, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या है ना एजुकेशन, एजुकेशन को लेके, या समाज में बहुत बहुत समस्याएं हैं यार, बहुत सारी समस्याएं समाज में, आई, सिविक सेंस, गंदगी, गंदगी कितनी बड़ी समस्या है, बहुत, आई डोंट नो मैन, लाइक देयर आर टू मेनी टॉपिक्स विच वी कैन आउटरीच ऑन, तो इस पे मुझे लगता है कि पब्लिक रिएक्शन वॉज एनफ, एंड मे बी, I don't know, because something has to act like a deterioration, but it should not have taken this much of the media time or the, हम लोगों का इतना अटेंशन, जो देश का इतना अटेंशन। अब जब मैं देश की बात कर रहा हूँ तो मैं जो ऑनलाइन रहता है 24 घंटे देश, उस देश की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि और काम नहीं हो रहे हैं, देयर आर पीपल हु डोंट इवन नो अबाउट दिस कंट्रोवर्सी, एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड। जितना कम लोग जाने सही है, बट देयर आर थिंग्स फॉर विच मीडिया शुड आउटरेज। अभी मैं तो देखता नहीं न्यूज़ चैनल और टीवी वगैरह, लेकिन अभी मैं घर गया था तो मैं टीवी लगाया हुआ था, कोई भी आप न्यूज़ चैनल खोल दो, कुछ ढंग की खबर नहीं है यार, क्या चल रहा है मतलब। जो हम लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जो पढ़ते रहते हैं ना, उसी को उनका वही न्यूज़ है उनकी, ये हो गया। अबे तू कर क्या रहा भाई, तूने तो बड़ा चैनल खोला हुआ है, कोई जा कहीं रिपोर्टिंग कर, कोई स्टोरी लेके आ, कोई ऐसी बात बता हमको जो हमको नहीं पता है। मुख्यमंत्री ने ली शपथ, देख लिया हमने, सबने देख लिया शपथ लेते हुए भाई। वो 20-30 साल पुरानी बात थी, जब लोगों के पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं था, हमारे पास मीडियम नहीं था, तो हमको पता नहीं था कि अरे शपथ ली कि नहीं ली, चलो न्यूज़ खोल के देखते हैं। ले ली शपथ, मुख्यमंत्री बन गए हैं, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अच्छा, वो तब का ज़माना था। अब तो सब कुछ तो लाइव आ रहा है, उन्हीं के चैनल पे लाइव आ रहा है, उनकी पार्टी के चैनल पे लाइव आ रहा है। वट आर यू डूइंग? इट शुड हैव बीन जस्ट वन लाइन, इन्होंने शपथ ली, 1 घंटे का शो चल रहा है, शपथ ले ली है और ये हो गया है, वो हो गया है, बिकॉज दैट इज़ एन ईजी थिंग, ईजिली ग्रैबेबल आइज हैं वो। बट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आई थिंक 20 ईयर्स बाद ये मटेरियल नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो टीवी वॉचिंग जनरेशन है, दे आर स्टिल नॉट दैट कनेक्टेड टू सोशल मीडिया। वो उतना एक्टिव नहीं सोशल मीडिया पे, और उनको उतना इन्फॉर्मेशन उन तक अभी उतनी क्विक नहीं पहुंच रही है। बट आफ्टर आई थिंक 20-25 ईयर्स द न्यू जनरेशन विल नॉट वॉच टीवी लाइक दिस टीवी, आई होप। क्योंकि अगर देखेंगे तो हम तो बर्बाद हैं भाई फिर क्योंकि ये तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है उसमें,
या इस पार्टी ने वो बोल दिया, उस पार्टी ने ये बोल दिया, इस नेता ने वो कर दिया, उस नेता ने वो कर दिया। बस सरकारें क्या कर रही है ज़मीन पे यार? अभी देखो, क्या बोलूँ यार, मैं नहीं बोलना चाहता, बहुत सारी बातें हैं ना, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड देहरादून से, वहाँ ही इतनी सारी न्यूज़ है, लेकिन वो लोकल में रह जाती है न्यूज़। ठीक है, वो लोकल न्यूज़पेपर और लोकल चीज़ों में रह जाती है न्यूज़, और उसको कोई फिर ऊपर लेके नहीं आता, और उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। और सरकारें इतनी पावरफुल होती हैं कि जो लोकल में जो लोग कर रहे हैं, दे हैव अ वे टू हैंडल देम। और ये आप देख सकते हो कि इस देश में जब तक कोई चीज़ बड़ा मुद्दा नहीं बनती नेशनल लेवल पे मीडिया के द्वारा, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक केस हुआ था उत्तराखंड में कुछ टाइम पहले, देयर आर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व इन इट, देयर आर पीपल इन्वॉल्व इन इट, पर उस पर कुछ नहीं हुआ। नो बडी नोज वाट। कुछ थोड़े दिनों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन लोग भी कब तक करेंगे? तो आई थिंक मीडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बदलने की देश में हमारे। इजी आई बॉल्स, कनाडा ने ये कर दिया है और ट्रंप ने ये, अब मैं अब गाली नहीं देना चाहता मैं, लेकिन तू बताना भाई, देश में इतनी सारी चीज़ हैं, तू जा किसी गांव में जाना भाई, उसके वहाँ कुछ बोल यार। एवरीबडी इज़ फुलफिलिंग देयर प्रोपेगेंडा, है ना? हर मीडिया हाउस ने और हर मीडिया चैनल ने और हर मीडिया आउटलेट ने एक साइड चूज़ कर ली है, एंड दे आर इधर डिफेंडिंग इट, और या तो दूसरी साइड पे कीचड़ फेंक रहे हैं। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। या दैट्स ऑल। तो मे बी, आई डोंट नो, थ्रू दिस पॉडकास्ट कॉल्ड इग्नोरांते, आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट दीज इश्यूज। आई डोंट नो, अगर आप लोग सुनोगे तो वो यही है अभी तक। तो ये पॉडकास्ट रहेगा, और जो मेरे दोस्त के साथ था, मे बी उसको भी मैं इसमें ही, उसके लिए अलग पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा मैं, उसके लिए मैं अलग इसलिए बना रहा था कि उसमें आई वॉज थिंकिंग कि हम इसमें अनहिंज्ड रहेंगे, बट आई थिंक तुम लोग बोल रहे होगे कि ये डिस्कशन का नतीजा नहीं, ये है डर, और ये डर अच्छा है। जो ही बोलो आप यार, पर जो भी है, मे बी, आई डोंट नो, मे बी अलग चैनल को स्टार्ट करूँगा। आई डोंट नो मैन, दैट्स माई प्रॉब्लम। आई डोंट नो। या दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ इग्नोरांते। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली का डेली अपडेट देता रहूँ। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, विच इज़ क्वाइट hard for me, sometimes difficult also, because it needs planning, it needs discipline, which I don't have in my life. Bye, sayonara, take care man.